हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मिसcellaneous एग्जांपल ऑन Gauss law for JEE and NEET. Example 1. An early model of an atom considered it to have a positively charged point nucleus of charge Ze. एक हम अगर एटम कंसिडर करें, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी हो आर, इसके सेंटर में कौन है न्यूक्लियस, इस पे कितना चार्ज है जेड, और यहाँ पर कौन है नेगेटिव चार्ज कितना माइनस जेड। ठीक, क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा है, देखिए द एटम इज एज अ होल इज अ न्यूट्रल सिलेक्ट किया गया। For this model, what is the electric field at a distance r from the nucleus? ठीक है, तो पहले ये r लेंगे, ठीक है, मतलब कि केस 1, कौन सा केस, r लेस देन r। ओके, सबसे पहले हमें क्या कंसीडर करना होगा, कंसीडर अ Gaussian surface of रेडियस r, ठीक है, और क्या ध्यान में रखना है, r लेस देन r, ठीक है। Therefore, according to Gauss law, integration E bar dot dA bar is equals to Q enclosed upon epsilon 0. Therefore, E into 4 pi r square. What is 4 pi r square? This is the total area of the considered Gaussian surface. This is a Gaussian surface. Okay, it will be the spherical shape. Okay, symmetrical, is equals to Q enclosed upon epsilon 0. Okay, now see, at center, how much charge Ze, right? And that is a positive charge, okay. Now I am saying in 4 by 3 pi r cube volume, negative charge is equals to minus Ze, right? How much is the negative charge? Minus Ze. Therefore, in 4 by 3 pi r cube, small r we will take, negative charge is equals to say Q2. So if it is asked what is Q2, then Q2 will be equals to minus Ze into 4 by 3 pi r cube divided by 4 by 3 pi r cube. So what answer we get? Minus Ze. This 4 by 3 cancel, pi also get cancel, r cube upon r cube, right? Therefore, Q enclosed is equals to Q1 plus Q2. What is Q1 plus Q2? Q1 plus Q2 is equals to Ze minus Ze r cube upon r cube. So let's make Ze common. So what we will get? 1 minus r cube upon r cube. Fine. Okay.
So now let's replace in the Gauss law. Therefore, E into 4 pi r square is equals to ZE upon epsilon 0 into 1 minus r cube upon r cube. Fine. Therefore, what we can write? E is equals to ZE upon 4 pi epsilon 0 r square. ZE upon 4 pi epsilon 0 r square. What we can write? 1 minus r cube upon r cube. Okay. So if you multiply this 1 upon r square here, what you will get? And 1 upon 4 pi epsilon 0 is the k. So that is the what? KZE. And this will be 1 upon r square minus r upon r cube. So that will be the electric field okay when you consider r less than r. Okay, now next case is very simple. For r equal to r, अगर हम ये ले या तो r ग्रेटर देन r, उन दोनों में q एनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू क्या आएगा? तो जेड ई है और माइनस जेड ई इज इक्वल्स टू 0 कूलम। ओके, तो गॉस लॉ क्या कहता है बच्चों? therefore E into A या तो dA is equals to 0 upon epsilon 0 आएगा। So what will be the answer? E is equals to 0 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये किसके लिए होगा बच्चों? अच्छी तरीके से देखिए, ये होगा फॉर R इक्वल टू R या तो R मैंने गलती कर दी, R ग्रेटर देन आर। देखिए मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ कि किस तरह नेट एनक्लोज चार्ज 0 हो गया। देखिए यहाँ पर हमें क्या लिया है हमने? होल एटम एज अ न्यूट्रल। तो कहने का मतलब क्या है कि इस एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। ठीक है, इस एग्जांपल को आप अच्छी तरीके से देखिए। ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इन सॉलिड स्फीयर चार्ज डेंसिटी वेराइज विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एज ρ इक्वल टू cx। ठीक है, यहाँ पर देखिए चार्ज यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे ही x बढ़ता है ओके वो चार्ज बढ़ता चला जाता है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। हमें कहाँ फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पर। नाउ व्हाट इज गॉस लॉ? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ solution. According to Gauss law, integration E bar dot dA bar is equals to Q enclosed upon epsilon 0 आएगा। ओके, therefore E into, अब देखिए ये है तो गॉसियन सरफेस हम इतनी ही कंसीडर करेंगे। आप प्लीज इसको स्फीयर समझिए। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, और ये पॉजिटिव है इसीलिए cos 0 हो जाएगा और आंसर क्या आएगा? cos थीटा इक्वल टू 1 और Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में मेनली हमें जो फाइंड करना होता है वो होता है Q एनक्लोज कितना होता है। अभी देखिए रो इज इक्वल टू हमें क्या दिया है बच्चों? रो इज इक्वल टू CX दिया है। रो का फॉर्मूला क्या होता है? dq upon dv is equals to cx. Therefore, dq is equals to cx into dv। ठीक है, अभी ये जो छोटी सी गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर की है उसका वॉल्यूम कितना होगा? उसका वॉल्यूम होगा 4 पाई आर स्क्वायर
मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, 4π(x²), या तो यहाँ पर r लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट पहले x लिखता हूँ, 4π(x) डिस्टेंस पे लिखता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर c x लिखा है इसीलिए, तो 4π(x²) इंटू dx। आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया, सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, 4/3πx³। सोचो dv/dx किया तो 4/3π ऐसे ही रहा, इसका क्या आंसर आएगा 3x²। सो ये 3 कैंसिल हो गया, सो व्हाट वी गेट dv इज इक्वल्स टू 4πx² dx, ठीक है। सो व्हाट वी गॉट इज द 4πc x³ dx किसी x डिस्टेंस पे। तो अगर हमें क्यू एनक्लोज पूरा फाइंड करना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। और कहां से कहां तक, देखिए 4πc कांस्टेंट है, 0 से लेके r तक, 0 से लेके r तक, ये r क्यों, क्योंकि हमें वहां तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, दैट्स वाई। ओके, सो x³ dx अगर हम करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट, क्यू एनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू 4πc, यहाँ पर x⁴ आएगा, वो उसके लिए मैं लिमिट पुट कर देता हूँ, तो क्या आएगा r⁴/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4, एंड व्हाट वी गॉट πc मल्टीप्लाई बाय r⁴। तो ये हमें क्या मिल गया बच्चों, क्यू एनक्लोज, ठीक है। तो आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज, वो हमें क्या मिला πc r⁴, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन 0। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई कैंसिल करेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी विल गेट दैट हियर r² एंड r⁴ cancel, so what we get c r² here, c r² upon 4 epsilon 0, ठीक है। ऐसे कोई भी डेंसिटी दी हो, सबसे पहले आपको क्यू एनक्लोज फाइंड करना है। क्यू एनक्लोज हमने किस तरह फाइंड किया, देखिए रो इज इक्वल टू dq/dv होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। क्यों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यों लिया, यहाँ पर कौन सा स्फीयर दिया है बच्चों, सॉलिड स्फीयर, इसीलिए, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ली, तो रो इज इक्वल टू सी एक्स, तो dq/dv, dq इज इक्वल टू सी एक्स इंटू dv आएगा, इस तरह हमें मिल गया, और उसका इंटीग्रेशन करके हमने क्या फाइंड कर लिया, क्यू एनक्लोज, एंड हियर वी गॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, ये आप देखिए, ऐसा ही है, अच्छी तरीके से देखिए इसको, क्या दिया है, लेट देयर बी अ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद चार्ज डेंसिटी वेराइंग एज रो इज इक्वल्स टू c 5/4, ऐसा अगर मैं लिखूं, ठीक है, सॉरी, मैं अगर यहाँ पे लिखूं तो क्या दिया है, रो इज इक्वल्स टू c 5/4 माइनस r/r, ऐसा दिया है, ठीक है। कब, जब r लेस देन r हो, और रो इक्वल टू 0 कब, जब r ग्रेटर देन r हो। मतलब कि ये जो स्फीयर है, स्फीयर के अंदर ही हमें रो की वैल्यू पता चलेगी, बाहर कितनी वैल्यू है 0, अंदर कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे जाएंगे r। तो जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में सॉल्व किया था, इन द सेम सेंस वी विल सॉल्व हियर, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला,
according to Gauss law, according to Gauss law, integration E bar dot dA bar is equals to Q enclosed upon epsilon 0. So E into 4 pi r square, मैंने बोला था ना कि यहाँ पर ऐसा गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी होगी, स्फेरिकली कंसीडर करनी होगी, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। ओके, और जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में किया था, इन द सेम सेंस हम रो की फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, रो इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी वी होता है, इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये पूरा C इंटू 5/4 माइनस R अपॉन R, ठीक। सो व्हाट विल बी द dq? dq will be equals to C इंटू 5/4 माइनस R अपॉन R इंटू dv। यहाँ पर dv बच्चों क्या आएगा, सोचो 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 सोचो, क्या आएगा, R अपॉन R, 4 पाई R स्क्वेयर डी आर, जो हमने किया था ना। हाँ, आई थिंक सबको आ गया होगा। ओके, अभी इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। सो व्हाट वी विल गेट, 5c/4 इंटू 4 पाई R स्क्वेयर डी आर माइनस, अभी यहाँ पर क्या आएगा, देखिए पहले तो मैं c लिख देता हूँ, फिर 4 पाई लिख दूंगा, फिर ये आर स्क्वायर और आर, तो क्या हो जाएगा आर क्यूब अपॉन आर इंटू डी आर, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ, 5c/4 ये तो आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर हो गया, माइनस यहाँ पर क्या मिला हमें, देखिए 4c पहले लिख दिया, फिर 4 पाई, फिर आर क्यूब डी आर, चलो ठीक है, ये क्या हो गया हमारा डी क्यू। तो अगर हमें क्यू एनक्लोज फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर 5c, ठीक है, देखो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर माइनस, यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए c इंटू 4 पाई अपॉन आर इंटीग्रेशन आर क्यूब डी आर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक, 0 से r तक, ठीक। आगे करें तो 5c पाई आर स्क्वायर का क्या होता है, आर क्यूब बाई 3 माइनस 4 पाई c अपॉन आर, अब यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो व्हाट वी विल गेट, 5c पाई आर क्यूब बाई 3 माइनस पाई c आर रेज टू 4 अपॉन आर इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, क्यू एनक्लोज। बच्चों अब तक हमें क्यू एनक्लोज ही मिला है, ओके, वी डजंट गेट फाइनल आंसर, ठीक है, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या था, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0, तो ये क्यू एनक्लोज ये पूरा है, ठीक है। इसमें से देखो बच्चों क्या कुछ कॉमन निकल रहा है, तो पाई कॉमन निकल रहा है, ठीक है, आर क्यूब और आर रेज टू 4, तो आर क्यूब कॉमन निकल रहा है, फिर सी भी कॉमन निकल रहा है, देखिए पाई 5 कॉमन नहीं निकल रहा है, 5, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ 5/3, देखिए सी चला गया कॉमन में, पाई चला गया और आर क्यूब चला गया, माइनस यहाँ पर पाई चला गया, सी चला गया और आर क्यूब चला गया, तो यहाँ पर क्या आएगा आर अपॉन आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें ई चाहिए, तो देखिए ये पाई
और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर और आर क्यूब सिर्फ आर बचेगा। सो व्हाट वी विल गेट आर सी, ठीक है, आर सी पाई पाई चला गया अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 5/3 माइनस आर अपॉन आर। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर और 4 को इधर नीचे डाल दिए। सो व्हाट वी गॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आर सी। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना। तो इस टाइप के एग्जाम्पल जब आपको एग्जाम में आए तब आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। हर बार जब डेंसिटी वेराई होती है बच्चों, उस टाइम पर हमें क्यू एनक्लोज्ड ही मैक्सिमम टाइम फाइंड करना होता है। ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल आई थिंक आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम ये जो पहला चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हुआ है उसके बेस के एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।